So what is given? Two projectiles A and B are projected with angle of projection 15 degree for projectile A and 45 degree for projectile B. If RA and RB be the horizontal range for the two projectiles, then what do you have to found? Relation between RA and what? RB. So if we have a projectile motion, what was the formula given for range? Tell me. Formula for range is what? Range R equal to U square sin 2 theta by G. Sin 2 theta by what? Now the question arises, RA and RB with a horizontal range for two projectiles. दोनों projectile का initial velocity हमको मालूम है क्या? Suppose this is A projectile, इसको project किया गया UA से, इससे, and the other projectile is thrown at an angle of say theta is same or different? One 15 degree and the other 45 degree, isn't it? That means for projectile number B, UB is different. UB मालूम है क्या? UA मालूम है क्या? That means sir, range does not depend only on theta. Range depends on theta as well as what? Range depends on बस theta या U and theta both. U and theta both. So only by theta can you give any conclusive statement? No. So option, which one option will be correct? Option D is given. The information is insufficient to determine the relation between RA and what? RB, क्योंकि हमको कोई इंफॉर्मेशन किसके बारे में मालूम नहीं है, U के बारे में, और रेंज का फॉर्मूला किसके ऊपर डिपेंडेंट है? U के साथ साथ theta. So we only know about theta, but we do not know anything about U. That means, sir, we cannot go for the relation exactly what is going to happen between RA and what. So correct option is option what? Option D is correct. Option D is correct. This is question number 11. Question number 11. Next बोलूं क्या? Next. Okay, please switch off. Next बोलूं? Have you written? Next. Next, read the next question. What is the next question say? A river is flowing from west to east at a speed of how much? 5 meters per minute. A man on the south bank of the river capable of swimming at 10 meters per minute. Capable of swimming 10 meters per minute in still water. Wants to swim across the river in shortest time. He should swim in a direction. So इस क्वेश्चन में only direction पूछा गया है. What they are asking? So let us draw the situation. What is the situation, sir?
suppose this is the river, suppose this is the river, and what we have, sir, we have what? River is flowing from west to east. So west is this side, east is this side. West to, so this is the direction of velocity of what? River. Velocity of what? River. A man on the south bank of the river. South bank matlab this side. North, south, west, east. South bank. There is a man here. Wants to swim across the river in shortest time. In what time? Shortest time. And what is the speed of the river? 5 meters per minute. Speed of the river is 5 meter per minute. Now tell me, what is the speed of the man? Nothing is given regarding the speed of the man. Oh no, capable of swimming at 10 meters per minute. Capable of swimming at, but we do not know what is the direction. हमको मालूम है क्या कौन सा डायरेक्शन में स्विम करेगा. So let us assume any arbitrary direction. This is the velocity of swimmer with respect to the river. अभी with respect to the river समझो ध्यान से. अभी दोनों रिवर के पास भी वेलोसिटी है और मैन के पास भी वेलोसिटी है. So suppose very simply I am going to say about relative velocity. What velocity? ध्यान से सुनना. relative velocity एक बार सुन लो. What is relative velocity? Suppose I am asking to find out velocity of A with respect to B. A एक पार्टिकल है who is moving with say 10 मीटर पर सेकेंड. कितना मीटर पर सेकेंड? B और एक पार्टिकल है which is moving with 5 मीटर पर सेकेंड. कितना मीटर पर सेकेंड? अगर मैं बोलूं what is the relative velocity of A with respect to B, that means A के रेस्पेक्ट में B को तुमको पकड़ना है रेस्ट पे. किस पे? कभी भी पूछा जाए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, मतलब B है ऑब्जर्वर. B क्या है? एंड A है टू बी ऑब्जर्व्ड. टू बी, अभी अगर A जा रहा है 10 से, B जा रहा है 5 से, तो B को क्या दिखेगा? A उसके रेस्पेक्ट में कितना से आगे जा रहा है? ओनली 5, ओनली वर्ड. अरे मैं जा रहा हूं 10 से, ये लड़की मेरे साथ है वो भी जा रही है 5 से, तो मेरे और उसके बीच में जो गैप है वो कितना करके बढ़ रहा है? 5 मीटर इन हाउ मेनी सेकेंड? 1 सेकेंड. दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी. व्हाट वेलोसिटी? 5 मीटर पर सेकेंड. कैसे निकाला? 10 minus 5. That means what should be the formula? VA minus VB. Understood? Not understood? Now if I ask you a different situation, suppose this is A, this is B. A is traveling with 10 meter per second, B is traveling with 5 meter per second. अगर मैं तुमसे पूछता हूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब ऑब्जर्वर कौन है बोलो? बी इज द ऑब्जर्वर एंड ए टू बी ऑब्जर्व. नाउ सर ए और बी के बीच में जो गैप है व्हाट इज स्पीड? स्पीड को फील करते हैं हम लोग कैसे? 1 सेकंड में डिस्टेंस का कम होना इज स्पीड, या डिस्टेंस का बढ़ जाना दैट इज स्पीड. दैट इज व्हाट? तो इन दोनों के बीच में जो भी गैप होगा वो अभी 1 सेकंड में कितना होके कम हो रहा है? ए कितना स्पीड से जा रहा है? ए कितना स्पीड से जा रहा है? 10. बी कितना स्पीड से आ रहा है? 5. तो ए और बी के बीच का गैप कितना से टोटल कम हो रहा है? 15. 1 सेकंड में ये दोनों के बीच का गैप कितना से कम हो रहा है? दैट मीन्स व्हाट यू हैव डन, यू हैव सब्ट्रैक्टेड और एडेड दिस टाइम. दिस मीन्स VA माइनस VB रिमेन्स द फॉर्मूला हियर ऑल्सो, बट ये डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव मानेंगे और ये डायरेक्शन में हम लोग नेगेटिव मानेंगे. तो सर जब मैं यहां पे VA का वैल्यू पुट करूंगा +10 और VB का वैल्यू क्या पुट करूंगा? -5. दैट मीन्स हाउ मच? 15 मीटर पर सेकेंड. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी.
when more than one object is in motion we'll go for what velocity? Relative velocity. इसका मतलब यहां पे स्विमर का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में लिखा गया है? विथ रेस्पेक्ट टू द रिवर, रिवर के रेस्पेक्ट में. अभी रिवर तो खुद मोशन कर रहा है और स्विमर का खुद का कुछ मस्कुलर पावर है, उसके लिए वो मूव करेगा. सो स्विमर के ऊपर कितना वेलोसिटी है? रिवर का वेलोसिटी और उसका मस्कुलर पावर का वेलोसिटी. सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर को लिखा जाएगा कैसे? स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू द, बिकॉज रिवर का वेलोसिटी भी उसका मोशन को अफेक्ट करेगा. करेगा नहीं करेगा? वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहेगा एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाएगा. देयर विल बी सम ड्रिफ्ट इन द मोशन. हु इज कॉजिंग द ड्रिफ्ट? The velocity of the river. There is river current. There is what? Whenever you have two objects in motion or you need to write the velocity of swimmer, first you check that whether the river is still or it is having some current. If it is having some current, then you will write velocity of swimmer with respect to river. With respect to what? So the value that is given in the question, capable of swimming at 10 meters per minute in still water, that is the velocity of swimmer with respect to the river के रेस्पेक्ट में वो कितना मस्कुलर पावर यूज कर पाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर मिनट. ओके, ओके नॉट ओके? सपोज width of the river is d. Width of the river is how much? So if width of the river is d, now sir, if this angle is theta, this angle is how much? Suppose this angle is theta, then we have two components of VSR. What are those components? VSR cos theta and this will be VSR sin theta. अभी अगर VSR का मैंने दो कंपोनेंट बना लिया है, so I do not require to focus upon VSR. अभी किसके ऊपर मेरा फोकस रहना चाहिए? ओनली ऑन द कंपोनेंट्स, ओनली ऑन द. अभी कौन सा कंपोनेंट बोलो तो आगे लेके जाएगा स्विमर को? VSR cos थीटा और VR, ये दोनों मिलके उसको कहां ले जाएंगे? सामने, मतलब एक्स एक्सिस में. अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस माना और ये डायरेक्शन को वाई एक्सिस माना, तो रिवर आगे जा रहा है, स्विमर भी आगे जा रहा है. किसकी वजह से? VR और कौन सा कंपोनेंट? VSR cos theta, which is responsible for crossing the river. Which component? VSR sin theta. That means if you wish to find out time, if you wish to find out time, तो टाइम का फॉर्मूला तुम क्या लिखेगा बोलो? टाइम विल बी हाउ मच? टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट बाय व्हाट? तुम कौन सा टाइम निकालना चाह रहा है रिवर को क्रॉस करने का? तो रिवर को क्रॉस करने का विड्थ वर्टिकली है या हॉरिजॉन्टली है? वर्टिकली. ये हॉरिजॉन्टल है. अगर मैंने इसको हॉरिजॉन्टल माना है, ये वर्टिकल है, तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? तो जब तुम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेगा तब तुम वर्टिकल डायरेक्शन का ही तो वेलोसिटी लेगा. टाइम का फॉर्मूला ऐसे नहीं सीखते. डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी ऐसे सीखा जाता है. डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ, बिकॉज दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द विड्थ ऑफ द रिवर डी. क्रॉसिंग द विड्थ ऑफ द रिवर डी. दैट मीन्स सर, अगर मैं टाइम निकालना चाहूं, किसका टाइम? रिवर को क्रॉस करने का, तो रिवर का विड्थ बोलो कितना है? अभी डी को कौन क्रॉस करवा रहा है? पूरा VSR, पूरा VR या VSR sin थीटा? So that component you will write in place of velocity which is responsible for crossing the width. Understood? Not understood? Understood? Not understood? टाइम का फॉर्मूला कैसे यूज करना है रिवर में? पहले क्या सीखा हमने? रिलेटिव वेलोसिटी. हल्का हल्का मीनिंग समझ में आ गया. रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना स्पीड से मोशन हो रहा है. ओके नॉट ओके? नाउ since river has got some velocity, so we'll write whatever we write velocity of swimmer with respect to the river. Now velocity of the swimmer with respect to river has been started in any arbitrary angle, say theta. I do not know where the swimmer is intended to swim, but what I know that if I have assumed VSR,
then I have two components. One is VSR cos theta and one is, now what VSR cos theta has got a rule. What is that rule? It will drift the swimmer in x-axis. In which axis? Along the length of the river. Along the length of the, but another component is responsible for crossing the river. Which is responsible for crossing the river? VSR sin theta. तो टाइम का फॉर्मूला में d by VSR cos theta आएगा, VSR आएगा या VSR sin theta? Okay, now let us go back to the question. Now let us go back to the question. What was the wish of the man? Crossing the river in shortest time. It is written over here. Crossing the river in what time? Shortest time. That means this time should be minimum. Not understood. This time should be what? अगर टाइम मिनिमम चाहिए, so this expression में time is dependent on which trigonometric ratio? Sin theta, and it is in the denominator. It is in the, that means sin theta should be maximum. And what is the range of sin theta? -1 to, here comes mathematics, -1 to, that means sir अगर sin theta मैक्सिमम हो गया तो टाइम क्या हो जाएगा? मिनिमम. अगर sin theta मैक्सिमम हो गया तो टाइम क्या हो जाएगा रे? मिनिमम. टाइम विल बी मिनिमम. दैट मीन्स सर sin theta will be maximum when sin theta will be 1. और sin theta 1 कब होता है? sin, understood not understood? That means theta equal to how much? 90 डिग्री. अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो टाइम क्या होगा? मिनिमम होगा. अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो टाइम क्या होगा? दैट मीन्स सर which is going to be my option? Now check. थीटा 90 होना पड़ेगा. थीटा 90 होना पड़ेगा. नो ऑप्शन. ड्यू नॉट. थीटा 90 मतलब कौन सा डायरेक्शन? ये, अरे नहीं बोला था ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट और ये, तो थीटा 90 मतलब ड्यू नॉट. सो व्हाट इज द डायरेक्शन? सर ऑप्शन ए इज द आंसर. आंसर इज व्हाट? ऑप्शन ए इज द आंसर.
हाँ, ये लड़का पूछा कि बी ऑब्जर्वर रेस्ट पे क्यों पकड़ना है. When you will be at rest, then you will say that A is approaching me. You are considering yourself at rest, so you will say A is approaching me with how much? 5 meter per second. With how much? A खुद कितना से चल रहा था? B कितना से? 5. A अगर 10 से चल रहा था, B अगर 5 से चल रहा था, तुमने जाके किसको पूछा? B को. किसको पूछा? तो B खुद को क्या मान लिया? रेस्ट पे. तो वो बोला मैं तो नहीं चल रहा हूं, ए मेरे रेस्पेक्ट में कितना से आ रहा है? 5 से. लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? ए इज मूविंग विथ 10 एंड बी इज मूविंग विथ 5. तो कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब दो बॉडी अगर मोशन में है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सो यू कंसीडर वन ऑफ देम एट रेस्ट, देन न्यूमेरिकल विल बिकम इजी. दोनों को एक साथ चलाने में, न्यूमेरिकल में जो इमेजिनेशन चाहिए कैलकुलेशन में, दैट विल बी डिफिकल्ट. सो एक को किस में पकड़ लेना है? रेस्ट पे. देन द एनालिसिस इज गोइंग टू बी इजी. फिर देख लो दोनों के बीच का गैप कितना से कम हो रहा है. दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू बेसिकली, टाइम का फॉर्मूला में यू आर गोइंग टू यूज डिस्टेंस बाई स्पीड की जगह में रिलेटिव स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी की जगह पे रिलेटिव वेलोसिटी. व्हाट वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव मींस विथ रिलेशन टू एन ऑब्जर्वर, इन रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर. क्योंकि कोई भी ऑब्जर्वर होता है वो खुद को रेस्ट पे मानता है. किसमें मानता है? रेस्ट पे. नेक्स्ट बोलूं? वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, वाह. ऑलवेज मेक कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर. तो न्यूमेरिकल इजी होगा, है ना. ऑलवेज मेक व्हाट? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. Then do the analysis. It is basically an example of motion in 2D. Motion in what? You are having two components. One is responsible for X motion and the other is responsible for Y motion. So it is a motion in 2 dimension. Motion in what? Next bolu. Next. Okay. Now see, read the question. What is written in the question? See. In the arrangement shown in figure, the ends P and Q, the ends P and Q of an inextensible string move downwards with speed कितना? U. Pulleys A and B are fixed. Pulleys A and B are what? Fixed. There are two pulleys A and B. The mass capital M moves upward with a speed. M कितना स्पीड से ऊपर जाएगा? So let us draw the situation. Let us draw the situation. What is the situation, sir? This is the fixed support. This is the what? And you have two pulley. This is pulley A and this is pulley. This is pulley A and this is pulley B. And there is a string. This is the string. This is the string. There is a mass, capital M. And this is P. This is what? Q. This angle is how much? What they have asked. The mass M moves with a speed. अगर मैं P को पकड़ के ऐसे खींचता हूं, ध्यान से सुनना, अगर P को पकड़ के मैं खींचता हूं, इस P को पकड़ के ऐसे खींचता हूं, मान लो U से, कितना से? E phi provide a velocity U to which point? P.
टी। तो ये जो धागा है इसका हर एक पार्टिकल कितना स्पीड से आएगा? यू से आएगा, नहीं आएगा? आएगा, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग द स्ट्रिंग टू बी इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग टू बी व्हाट? ध्यान से सुनना, ये अगर यू से आएगा तो नेक्स्ट पार्टिकल भी कितना से आएगा? नेक्स्ट पार्टिकल भी कितना से आएगा? ये पार्टिकल भी कितना से आएगा? बिकॉज यू कैन नॉट डिस्टर्ब द रिजिडिटी ऑफ द सिस्टम। द सिस्टम इज इनएक्सटेंसिबल, दैट मीन्स धागा को तुमको तोड़ना नहीं है ना? बट देयर शुड बी द मोशन ऑकरिंग। ये यू को तुमने ऐसे खींचा कि नेक्स्ट पार्टिकल भी यू से आया, नेक्स्ट पार्टिकल भी यू से आया, नेक्स्ट पार्टिकल भी यू से आया, ये पार्टिकल भी यू से आया, ये पार्टिकल भी। So what is the concept that sir is using in धागा न्यूमेरिकल? In धागा न्यूमेरिकल the concept sir is basically using कि हर एक पार्टिकल अगर u से आ रहा है तो उसका कनेक्टेड पार्टिकल भी कितना से आएगा? u से आएगा। अगर ये u से आएगा तो नेक्स्ट वाला पार्टिकल भी कितना से आएगा? u से आएगा। अगर ये दोनों को ऐसे मैंने खींचा, ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? ऊपर। कहां जाएगा? So they are basically asking you about the speed of capital M. Speed of what? So sir, speed of capital M will be how much? This is question mark. How to find out speed of capital M? Tell me. मान लो ये M कितना से जा रहा है ऊपर? V से। कितना से जा रहा है? V से। ये एंगल कितना है बोलना? थीटा। तो V का कंपोनेंट एक होगा इसके तरफ। किसके तरफ? धागा के तरफ। व्हाट इज दैट कंपोनेंट? V का कंपोनेंट इधर। अगर मैं बोलूं ये V है, ये U है, ये एंगल थीटा है, तो V का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग V cos थीटा, एंड V cos थीटा इज बेसिकली U। V cos, ये जो कंपोनेंट आया धागा में, तो धागा का हर एक मॉलिक्यूल कितना से जा रहा है? U से। सो V cos थीटा जो आया वो तो मॉलिक्यूल का स्पीड आया, और मॉलिक्यूल का स्पीड किसके बराबर है? दैट मीन्स यू आर गोइंग टू राइट V cos थीटा इज इक्वल टू क्या? U। सो V इक्वल टू कितना? U बाई। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज व्हाट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज व्हाट? Correct. Always remember you have to find out the component of velocity along the string. Along the string. Along the what? इस पॉइंट को कितना से खींचा मैंने? U. सो ये पार्टिकल भी कितना से आया? U. ये पार्टिकल कब आएगा? जब ये ऊपर जाएगा, नहीं तो आएगा क्या? अगर ये बोलेगा मैं मूव नहीं करूंगा, ये मूव नहीं करेगा, ये अगर रिजिड हो जाएगा, दैट मीन्स अगर तुम स्ट्रिंग को खींचेगा तो ये पार्टिकल आगे जाएगा, ये तो रुका हुआ है, तो ये पार्टिकल पीछे रह जाएगा। ये पार्टिकल, धागा कब टूटता है? एक धागा कब टूटता है? जब आगे का पार्टिकल स्पीड में आगे चला जाता है, पीछे का पार्टिकल पीछे रह जाता है। तो उनके बीच का गैप क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ते बढ़ते एक टाइम आ जाता है जब धागा क्या हो जाता है? टूट जाता है। दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट। व्हाट पॉइंट? लेकिन यहां पे बोल रहा है धागा को तोड़ना नहीं है। यू कैन नॉट बी सो डिस्ट्रक्टिव। यहां पे क्या करना है? इसको धीरे से खींचना है। यू, इसको तुम खींचेगा तो ये पॉइंट भी कितना से आएगा? यू से। तभी धागा धागा रहेगा, नहीं तो ब्रेक हो जाएगा। अगर ये पॉइंट यू से आगे जाएगा, मतलब ये मास को किधर जाना पड़ेगा? ऊपर। क्योंकि इसको अगर मैं धीरे से ऐसे खींचता हूं तो ये मास ऊपर जाएगा। मतलब ये मास ऊपर जाने से वेलोसिटी का एक कंपोनेंट किसकी तरफ आता है? धागे की तरफ। कौन सा कंपोनेंट आता है वेलोसिटी का? v cos थीटा। और वही v cos थीटा इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस u। टू प्रोड्यूस व्हाट? अरे ये ऊपर नहीं जाएगा तो इसका कंपोनेंट कोई आएगा क्या इधर? नहीं आएगा। तो अगर कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा तो ये पार्टिकल पीछे रह जाएगा, ये आगे चला जाएगा, तो धागा टूट जाएगा। दैट वी शुड नॉट डू। सो इसका मतलब सर ये मास ऊपर जा रहा है और उसका एक कंपोनेंट किधर आ रहा है? ये मास ऊपर जा रहा है तो उसका मास किधर आ रहा है? उसका कंपोनेंट किधर आ रहा है? इधर। कितना कंपोनेंट आ रहा है? b या v cos थीटा? v cos थीटा। एंड दैट v cos थीटा इज रिस्पांसिबल फॉर क्रिएशन ऑफ व्हाट? सो
No one. Okay. There is another method for solving the same numerical. We'll do it now. This is the easiest method by which you can find out what? Velocity along the string. Velocity along the. There are other methods to find out, but that will take some amount of calculation. Next बोलो. Next. Now see, alternative method. What method? Alternatively, how we can solve? Suppose this is the pulley. देखो इधर देखो, हंसो मत, अभी जो हंसा बाद में रोया. Oh, sorry. Suppose this distance is d. This distance is how much? And this length, say this is L. This is what? L. And this one, or say this one is L, and this is Y. This is how much? Now use Pythagoras. This has got some velocity. How much? V, है ना? And this is U. ये दूरी कितना है? D. ये लेंथ कितना है? And this is what? Y. Pulley are considered as massless. So this is a point. This is a, use Pythagoras and do derivative on both sides. Use Pythagoras. Using what theorem? Using what theorem?
using Pythagoras. What you are going to write using Pythagoras? Tell me. What you are going to write using Pythagoras? Y square equal to L square plus D square. Now differentiate both sides with respect to time. Why, sir? Why differentiation? Because you want velocity, and velocity is rate of change of position. Rate of change of. So these are y, l. These are what? Positions. D तो फिक्स है. D चेंज होगा क्या? चेंज क्या होगा? ये मास ऊपर जाएगा तो क्या चेंज होगा? L. L चेंज होगा. और ये मास ऊपर जाएगा तो y भी चेंज होगा. तो चेंज कौन कौन हो रहा है? y और L. D चेंज होगा क्या? D चेंज हो जाएगा. That means, sir, on differentiating both sides with time, क्या लिखना है बोलो? इसका डेरिवेटिव बोलो. d dt of y square is equal to d dt of L square plus d dt of d square, isn't it? Huh? Now tell me, what is d dt of y square? 2y. Only 2y. Where is chain rule? यहां पे t है, यहां पे t है क्या? देन यहां पे क्या वेरिएबल है? तो इसको मन में क्या पकड़ना पड़ेगा? t. t पकड़ के फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. ddx of x to the power n. What is the formula? ddx of x to the power n. What is the formula? n x to the power. अभी बोलो क्या होगा? ये 2y तो हो गया, लेकिन वापस क्या करना पड़ेगा? dy by. How can you forget chain rule? Only 2y. What was the formula for derivative? ddx of x to the power n. n x to the power. यहां पे x, यहां पे x. अभी यहां पे x, यहां पे x है क्या? यहां पे t है, यहां पे कितना है? y है. तो y के रिस्पेक्ट में पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर चेन रूल लगाएंगे. क्या लगाएंगे? चेन रूल. नाउ राइट साइड में बोलो. ये राइट साइड में क्या आएगा? 2l इंटू dl by dt. एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट. d कांस्टेंट है या वेरिएबल? सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विल बी. फोकस नहीं रहेगा तो आएगा आंसर उल्टा पुल्टा. मोबाइल देख देख के आंसर आ जाएगा. dl by dt. 2 to what? Cancel. What is dy by dt? What is dy by dt? किसका वेलोसिटी? उस धागे का पॉइंट का वेलोसिटी. ये y चेंज हो रहा है. y टाइम के साथ चेंज हो रहा है. और इस तरफ हमने क्या पकड़ा था? u नहीं पकड़ा था. नहीं पकड़ा था. ये पॉइंट आगे जा रहा है. सर पोजीशन y क्या बता रहा है? पोजीशन किसी भी टाइम इंस्टेंट पर. तो ये धागा का हर एक पॉइंट ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा. ये पॉइंट आगे जाएगा, मतलब क्या चेंज हो रहा है? y चेंज हो रहा है. y किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में. तो y अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, मतलब वो उस डायरेक्शन का क्या बताएगा? वेलोसिटी. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन द y के लाइन में कौन सा वेलोसिटी है? u. सो dy by dt is basically what? u. and dl by dt. l अगर चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन है? सो dl by dt क्या होगा? v. होगा नहीं होगा? नाउ u by l. और l को नीचे ले जाते हैं. अच्छा ठीक है, लिख लेता हूं एक स्टेप. ओके. नाउ टेल मी, v इक्वल टू u बाई l बाई y. l बाई y क्या है बोलो? अगर ये एंगल थीटा है तो l बाई y क्या है? बेस बाई हाइपो नहीं है. सो फ्रॉम द ट्राइंगल यू कैन राइट cos थीटा इक्वल टू l बाई y. दैट मीन्स l बाई y की जगह में क्या होगा सर?
सो यू भाई आया नहीं आया, आया नहीं आया. दिस इज हाउ यू डू द सेम न्यूमेरिकल ऑल्टरनेटिवली. अंडरस्टूड. बट दैट न्यूमेरिकल दैट मेथड वाज वेरी इजी. बट अभी धागे का कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ नहीं आता. ये ऊपर जाएगा, किसका कंपोनेंट किसका डायरेक्शन में आएगा, दैट यू शुड अंडरस्टैंड. और यू हैव टू डू बाय पाइथागोरस एंड डेरिवेटिव एंड वर्ड डेरिवेटिव. dy स्क्वायर बाई dt 2y. इतना कैलकुलस पढ़ाने के बाद नो फोकस, नो रिवीजन. ओएनजीसी श्रीकोना पे है अनुष्का सुन. और ओएनजीसी श्रीकोना का एक लड़का को पढ़ाया था. इंजीनियर को तो जॉब नहीं मिलता अकॉर्डिंग टू यू. सो सी Samuel Loshkar. Yesterday he was placed in Google from IIT Guwahati. 85 lakhs per annum. Per annum was the package. कोविड में आता था, अकेला पढ़ के जाता था. कोविड में जब सब बच्चा घर में बैठा हुआ था. This is how engineers get package. Already 1 car, 2 cars have been gifted by company before joining. गूगल है वो फालतू कंपनी नहीं है 30-35 हजार का. इट्स गूगल. गूगल, माइक्रोसॉफ्ट. इन हैंड सैलरी विल बी मिनिमम 6 lakhs पर मंथ. एंड पार्क्स तो छोड़ो, एक्स्ट्रा पार्क्स, घूमने का, खाने का, लीव अबाउट द पार्क्स. यू विल नॉट हैव टू यूज दिस सैलरी इवन. इतना पार्क्स मिलेगा, सैलरी तो इंटैक्ट रहेगा. फ्रॉम IIT गुवाहाटी. मेहनत करता था. ही वॉज वेरी क्वेश्चनेबल, क्यूरियस. सर ये ऐसे क्यों नहीं होगा. दैट वॉज इंडिकेशन. फर्स्ट अटेम्प्ट, नो ड्रॉप. फर्स्ट अटेम्प्ट, नो ड्रॉप हियर. उनको डेरिवेटिव नहीं आता. चेन रूल, चेन रूल में अभी तक कंफ्यूजन है. ये सब आंसर सीख लेगा बच्चा लोग. इसी वर्मा का ये सब न्यूमेरिकल एक एक बच्चा इतना टाइम करेगा वो सीख लेगा. डायरेक्ट आंसर ही सीखा हो जाएगा. क्वेश्चन दिखते ही बोल देगा यू बाई कॉस थीटा इज द आंसर. डायरेक्ट, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड. Because they will practice it 3, 4 many times. After 5 to 6 times ये सब देखते 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 हैबिट हो जाएगा. Because पहले पहले वो सब टफ लगता है. फिर when you do practice, you learn, you know things much better. तो प्रैक्टिस करते करते you will handle many different numericals. वो प्रैक्टिस करते करते आएगा. सर अच्छा नहीं लगा, प्रैक्टिस नहीं हुआ, मैं सक नहीं रहा हूं, you leave. This is the methodology of study of a loser. You do not leave, you stick to the point. I will try. देखते हैं क्यों नहीं होता है. I will solve more numericals. I will search here and there. I will see. I will go into the deep. Then I will again try. Then I will again fail. Then I will again try. Ready-made कुछ नहीं मिलेगा. You want everything to be served in a plate. That is your wrong idea. You will never have anything served in a plate. You will work hard, then you will go into a good position. Otherwise, you have to compromise with lower position. This is how things work, at least in our country. बोलू नेक्स्ट. हो गया. ओके, वेरी गुड. Now see, very easy question we have. Give me answer directly. Give me answer. Consider the motion of the tip of the minute hand of a clock in 1 hour.
मिनिट हैंड ऑफ ए क्लॉक रे, मतलब सपोज दिस इज द टिप, तो 1 घंटा बाद तो घूम के वापस आ जाएगा ना, हाँ। सो डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट जाओ, बी, oh sorry, another option is there. Average velocity will be, what is the formula for average velocity? Average velocity is equal to total displacement by total time, है ना? So total displacement is 0. So option A and option D are your answers. Option A and option, average velocity is 0, total displacement is 0. अच्छा, डिस्टेंस बोलता तो डिस्टेंस 0 है क्या रे? डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई आर, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। डिस्टेंस क्या होगा? सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सो डिस्टेंस विल बी 2 पाई आर, 2 पाई, अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? डिस्टेंस 0 होगा क्या? नहीं, डिस्टेंस विल बी 2 पाई आर, दैट इज द लेंथ ऑफ द सर्कल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सर्कल? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। व्हाट इज द पेरीमीटर फॉर्मूला? 2 पाई आर। देन टाइम अगर बोलता तुमको निकालने के लिए, टाइम अगर बोलता तुमको निकालने के लिए, हाउ विल यू इवेलुएट टाइम? टेल मी, हाउ विल यू इवेलुएट टाइम? टाइम विल बी t इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। मान लो पूरा सर्कल में, मान लो पूरा सर्कल में स्पीड का वैल्यू भी था, क्या था? यहां पे मैं वेलोसिटी बोला हूं या स्पीड बोला हूं? वेलोसिटी में दो चीज होता है, वेलोसिटी में दो चीज होता है, क्या क्या होता है बोलना एक बार? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सर्कुलर मोशन में कहीं पे पार्टिकल का अगर मोशन दिखाना हो तो हम लोग टेंजेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बिकॉज यहां पे जब पार्टिकल होगा तो इनर्शिया की वजह से वो इधर जाना चाहेगा, फिर फोर्स लगेगा, फोर्स लगा के इधर घुमा दिया, फिर फोर्स लगा के इधर घुमा दिया, फिर फोर्स लगा के इधर घुमा दिया, फिर इधर घुमा दिया। मतलब एवरी टाइम द पार्टिकल इज ट्राइंग टू गो इन सम डायरेक्शन, बट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन फोर्स, जिसका नाम भी तुमको मालूम होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स लगने की वजह से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है? सो हियर द डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन इज, बट द मैग्नीट्यूड इज व्हाट? कांस्टेंट। अगर ऐसा सर्कुलर मोशन है जहां पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस तरह का सर्कुलर मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या सर्कुलर मोशन? आई एम डिस्कसिंग दिस टॉपिक बिकॉज नेक्स्ट जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा विल बी रिलेटेड टू दिस पार्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? जहां पे क्या चेंज होगा? कोई भी सर्कुलर मोशन हो, डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा, बट यहां पे क्या कांस्टेंट रहने वाला है? तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब पूरा सर्कल को मान लो ये कवर किया है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो यहां पे डायरेक्शन तो चेंज हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है रे? यहां पे भी कितना है रे? क्या? सेम 5 मीटर पर सेकेंड। कितना है? सेम। डिस्टेंस बाई क्या? स्पीड। डिस्टेंस बोलो कितना? 2 पाई आर। मान लो रेडियस तुमको दिया है 1 मीटर। कितना मीटर? 1 मीटर, है ना? और स्पीड सर ने कितना पकड़ा? v। तो 2 पाई इंटू 1 डिवाइडेड बाई v कितना होगा? 5। दैट मीन्स आंसर इज 2 पाई बाई 5 सेकेंड्स। 2 पाई बाई 5, 2 into 3.14 by 5. Then you will do calculation. Whatever time you get. This is going to be very useful in class 11 as well as class 12. Calculation of time in a circular motion. Calculation of time in a, because class 12 में बोला जाएगा a charged particle is moving in a circle. तब भी तुमको टाइम निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस बाई स्पीड। 2 पाई आर बाई वी, 2 पाई आर बाई, ओके नॉट ओके? मतलब here options were which one and which one? A and D. And we have discussed something about what?
कैलकुलेशन ऑफ टाइम, कैलकुलेशन ऑफ टाइम। टाइम लगेगा या नहीं लगेगा सर्कुलर मोशन करने में? लगेगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसका मतलब टाइम नहीं लगेगा क्या? सर्कल घूमने के लिए तो टाइम लगेगा। टाइम क्यों लग रहा है? बिकॉज इट इज कवरिंग सम लेंथ विथ सम स्पीड, इट इज कवरिंग सम लेंथ विथ सम लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड v। तो अगर लेंथ है 10 मीटर, स्पीड है 5, तो कितना सेकंड में कवर हो जाएगा? 2 सेकंड में। नहीं समझ में आया? नॉर्मल कैलकुलेशन दे, कुछ सर्कुलर हर्कुलर नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन लिखा। नेक्स्ट 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 बोलू क्या? नेक्स्ट विल डू another numerical, not from EC Verma. We'll do a numerical regarding distance and displacement. Distance and, let us see. Suppose given position time equation, given position time equation of a particle, x equal to t square minus 4t, t square minus 4t. Find distance, comma displacement, average speed and average velocity from t equal to 0 to t equal to 3 seconds. T equal to 0 to t equal to how much? So this is the question. Can you find out the distance? निकालो, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बोलो? हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? Solution. Very carefully see. First try to understand the situation. In kinematics you have to draw the situation.
t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां पर था? दिस इज पोजीशन इक्वेशन. दिस इज व्हाट इक्वेशन? x जो दिया गया है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट? पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? ये समझ में आ गया? देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल विल बी होमवर्क. सपोज t इक्वल टू 0. t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन, कैन यू टेल मी? 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 मतलब 0. ओके, now find out the equation of velocity. सर वेलोसिटी क्या होगा? क्योंकि यह फंक्शन ऑफ टाइम है तो वेलोसिटी विल बी dx by dt. dx by dt. x किसका फंक्शन है? x किसका फंक्शन है? टाइम का, है ना? तो वेलोसिटी इक्वल टू dx by dt मतलब d dt ऑफ x. x बोलो t स्क्वायर माइनस 4t. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? जल्दी से बोलना एक बार. ddx ऑफ x, नीचे भी t ऊपर भी t, कोई टेंशन. 2t माइनस, इजंट इट? अभी चेक करते हैं ये वेलोसिटी कभी 0 होगा या नहीं होगा. लेट अस चेक. लेट अस, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हम मान लेंगे किधर? दिस डायरेक्शन मान लेंगे. एंड नेगेटिव विल बी उल्टा डायरेक्शन. Because we are finding out velocity equation, not speed equation. This is velocity equation. What equation? अच्छा सर, इक्वेशन देख के कैसे पता चलेगा कि वेलोसिटी 0 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बीच में माइनस साइन है. सो देयर माइट बी सम वैल्यू ऑफ टाइम जहां पे वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए. सो यू हैव टू चेक. सो लेट अस चेक. चेकिंग नंबर 1. व्हाट टू चेक? वेलोसिटी इक्वल टू कितना? देखते हैं वेलोसिटी कब 0 हुआ. 2t माइनस 4 इक्वल टू कितना? तो t इक्वल टू 4/2 मतलब 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. देखते हैं 2 सेकेंड बाद पार्टिकल कहां पर था. अच्छा, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां पर था? x 0 था ना, तब उसके पास t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितना था? 2t माइनस 4 मतलब 2 इंटू 0 माइनस 4 मतलब माइनस 4 मीटर पर. और माइनस किस तरफ पकड़ा गया है? मतलब सर मान लीजिए आपने यहां पे पकड़ा है x इक्वल टू 0. x इक्वल टू क्या है ना? तो x इक्वल टू 0 से पार्टिकल का जर्नी शुरू होने वाला है. वो तो मैंने पता कर लिया. इनिशियली पार्टिकल कहां पर था? 0 पर. तो पार्टिकल शुरू करेगा जर्नी x इक्वल टू कहां से? और x इक्वल टू 0 पे उसके पास वेलोसिटी 0 था या माइनस 4? माइनस इंडिकेट करता है डायरेक्शन. क्या इंडिकेट करता है? मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट या राइट? कितना मीटर पर सेकेंड? माइनस 4. अरे डायरेक्शन दे दिया तो माइनस क्यों बोलना है? कितना मीटर पर सेकेंड? वेक्टर के सामने माइनस क्या इंडिकेट करता है? क्या इंडिकेट करता है? तो डायरेक्शन तो लेफ्ट दे दिया है, तो फिर से माइनस बिठाना है क्या? कितना मीटर पर सेकेंड? और 4 मीटर पर सेकेंड में कितना दूर जाने के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो रहा है? मतलब कितना टाइम जाने के बाद? 2 सेकेंड. मतलब इस डायरेक्शन में वो कितना टाइम के लिए चला होगा? 2 सेकेंड. तो यहां पे कहीं पे 2 सेकेंड होगा. 2 सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? होगा नहीं होगा? अभी मुझे चेक करना पड़ेगा 2 सेकेंड में वो कहां पहुंचा था. मुझे एक चीज पता चल गया, वो लेफ्ट की तरफ गया था. नहीं पता चला? नहीं पता चला. x जब 0 था, t जब 0 था, v कितना था? -4. -4 मतलब पार्टिकल किधर चला था? लेफ्ट में चला था. चला था नहीं चला था? और लेफ्ट में जाते जाते कभी उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा. कभी मतलब कब? दिस इज एनालिसिस वी आर डूइंग, सिचुएशन एनालिसिस. वेलोसिटी 0 हो जाएगा. ओके सर, वेलोसिटी 0 हो गया. अभी चेक करना पड़ेगा वेलोसिटी 0 हो गया तो कितनी दूरी पर हुआ था. लेट अस चेक.
2 सेकंड बाद x का वैल्यू कितना होगा? x का इक्वेशन क्या था? t स्क्वायर माइनस 4t, तो t इक्वल टू कितना सेकंड? देखते हैं 2 सेकंड बाद पार्टिकल कहां पहुंचा। 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, मतलब बोलो, तो पोजीशन आया -4। ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, अगर यहां पे x 0 है तो लेफ्ट की तरफ नेगेटिव कोऑर्डिनेट और राइट की तरफ ओके। सिचुएशन के साथ वैल्यूज मैच हो रहा है। कितना दूरी पर गया था? 4 मीटर ट्रेवल कर लिया। पार्टिकल कितना मीटर कवर कर लिया? 4 मीटर। मतलब सर दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? 4 मीटर। ओके नॉट ओके? लेकिन हमें क्या 2 सेकंड में कहानी खत्म करना है या 3 सेकंड तक जाना है? जाना है 3 सेकंड तक। दैट मीन्स मोर एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। ओके सर, विल डू। नाउ कैन यू टेल मी अगर t का वैल्यू 2 से छोटा होगा तो वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर t का वैल्यू 2 से छोटा होगा तो वेलोसिटी क्या आएगा? आएगा नहीं है? आया तो था 0 पे। कितना आया था? तो 0 क्या 2 से बड़ा नंबर है क्या? ये छोटा नंबर है। इफ इट इज छोटा देन वेलोसिटी इज गोइंग टू बी नेगेटिव। दैट मीन्स सर व्हाट यू आर ट्राइंग टू से दैट anything less than 2 anything and greater than equal to 0 velocity is going to be negative. Velocity is going to be exactly t equal to 2 सेकंड पर velocity कितना हुआ? 2 सेकंड पर velocity 0 हो गया, है ना? अभी मेरा एनालिसिस खत्म होगा जब 2 से 3 जाऊंगा। तो एनीथिंग ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू क्या रे? नॉट लेस देन इक्वल टू, गिव ओके। वेलोसिटी इज गोइंग टू बी व्हाट? पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ? ये पार्टिकल या जो भी आदमी है इसके साथ क्या सिचुएशन है? पहले किधर गया था? किधर गया था? लेफ्ट में। लेफ्ट में जाके वेलोसिटी मोमेंटरीली यहां पे 0 हुआ और रुक गया। क्या कैसे पता चला? क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गया? मतलब वो जाके फिर घुमा या नहीं घुमा? मतलब सर ये यू टर्न लेगा। क्या लेगा? यू टर्न लेगा। अभी लेके कहां जाएगा मुझे नहीं पता, और मुझे पता करना भी नहीं है क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न अप टू कितना सेकंड है। तो मुझे बस ये पता करना है कि 3 सेकंड में वो कहां तक चला होगा, उसका पोजीशन निकालेंगे 3 सेकंड में। ये x डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है? x पोजीशन है जो बताएगा वो ओरिजिन से कितना दूरी पर है। कहां से? दिस इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्योंकि पोजीशन हम हमेशा लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। रिमेंबर दीज पॉइंट्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल डू कि x ही डिस्प्लेसमेंट है, तुम्हारा माता x डिस्प्लेसमेंट है। x डिस्प्लेसमेंट नहीं है, x क्या है? पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट अलग चीज होता है। पोजीशन मतलब मैं ओरिजिन से कितना दूरी पर हूं, डिस्प्लेसमेंट मतलब मैं अपना इनिशियल पोजीशन से कहां तक चला हूं। अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड? नाउ t अगर 3 है तो x का वैल्यू कितना आया? बोलो। 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, मतलब x का वैल्यू आया 9 माइनस 12। 9 माइनस 12 इज हाउ मच? -3। मतलब सर मैं समझ गया -3 का क्या मतलब होता है। -3 का मतलब होता है ओरिजिन से कितना दूरी पर आया रिटर्न, लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ। ये जो -3 आया ये माइनस क्या इंडिकेट करता है रे? लेफ्ट। कितना दूरी? मतलब पहले तो वो चला था 4 मीटर, अभी 3 सेकंड बाद मैंने देखा कि ये ओरिजिन से कितना दूरी पर है? 3 मीटर। ओरिजिन से कितना दूरी पर है? ये कितना चला था? 4। 3 सेकंड बाद वो कितना दूरी पर है? 3।
नहीं समझ में आया? आया नहीं आया? अभी मुझे सिचुएशन से बताओ डिस्टेंस कितना चला है 3 सेकेंड तक। ये पॉइंट है t इक्वल टू 3, t इक्वल टू कितना 3, ये कितना है 4, तो ये भी कितना होगा टोटल। अभी थोड़ा डायग्राम को चेंज कर देते, थोड़ा देखने में वो ये देखो, ओरिजिन से 3, ओरिजिन से क्या यहां तक होगा 3, है ना, 3 होगा या नहीं होगा? तो ये कितना मीटर होगा रे? 1 मीटर। कितना मीटर? मतलब पार्टिकल यहां से यहां तक कितना चला 4, फिर इधर आके 3 सेकेंड हो गया। कितना सेकेंड हो गया? और 3 सेकेंड ही तो मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। कितना सेकेंड मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है? 3 सेकेंड ही तो मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। तो पहले 4 गया, फिर 1 गया, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? नहीं समझ में आया? कुछ भी कुछ नहीं आता है तुम लोगों को समझ में। 4 + 1 कितना मीटर? 5 मीटर। कितना मीटर? बोलना। डिस्प्लेसमेंट, वो जर्नी कहां से शुरू किया था? 0 से। हमेशा 0 से शुरू होगा क्या? जरूरी है क्या? जब मैंने पार्टिकल को देखा ये सिचुएशन में ये 0 पे था, ऐसा कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है जहां पे पार्टिकल 0 से शुरू ना करके कहीं और से शुरू करे, तो वो होगा उसका इनिशियल। अभी इस केस में जो मैंने ओरिजिन माना है वही उसका इनिशियल पोजीशन है ना? कुछ समझ नहीं आता? अगर मैं यहां पे t² - 4t + 3 दे देता, +3, तो क्या होता? t 0 पे बोलो तो 0² - 4 × 0 + 3, तब x 0 होता या 3 होता? मतलब वो पार्टिकल यहां कहीं से जर्नी शुरू करेगा, तो वो होता उसका इनिशियल पॉइंट। सर आप बार बार इनिशियल फाइनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मुझे निकालना है भैया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल। अभी इनिशियल कौन सा पॉइंट है? ये इनिशियल पॉइंट है, और ये उसका कितना सेकंड में, तो कितना मीटर है? तो आंसर इज डिस्प्लेसमेंट खत्म, 3 मीटर। वेक्टर क्वांटिटी है टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स व्हाट? ये राइट होगा लेफ्ट होगा? डिस्प्लेसमेंट इज ए व्हाट क्वांटिटी? वेक्टर। तो वेक्टर में बस 3 मीटर लिख के छोड़ देंगे क्या? माइनस लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। उसको मालूम क्या माइनस कहां पकड़ा प्लस किया है? वो समझेगा लेफ्ट या वो मतलब कौन? हाँ, एग्जामिनर, क्वेश्चन सेटर। वो भी ऑप्शन कैसे देगा? -3 देगा क्या? वो देगा 3 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, 3 मीटर टुवर्ड्स राइट, है ना? अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? लेफ्ट, हाँ। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल, और तो ये इनिशियल और ये, तो ओरिजिन से मतलब उसका इनिशियल से वो लेफ्ट में है या राइट में है? लेफ्ट में है। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? अगर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, अगर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहां पे क्या लिखेगा? -3 मीटर। -3 मीटर ना लिख के क्या लिखेंगे हम लोग? 3 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर मैं लिखता 3 मीटर टुवर्ड्स राइट, मतलब कहां पर होता? उसके ओरिजिन से राइट साइड में, उसके ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, क्योंकि बात होता है उसकी इनिशियल पोजीशन के साथ। किसके पोजीशन के साथ? हाँ, इनिशियल से वो किधर खड़ा है? सर इनिशियल से वो 3 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। कितना मीटर डिस्प्लेस हुआ है? क्योंकि ये गया था 4, वापस आ गया 1, मतलब कितना मीटर पे है? 3 मीटर पे है। दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो दो चीज तो हो गया, डिस्टेंस हो गया और लिखो, और एवरेज स्पीड तो तुम निकाल ही लेगा। स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। नहीं निकाल पाएगा? लिख देता हूं इधर, इधर लिख देता हूं इधर। एवरेज स्पीड बोलो तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाई टाइम, मतलब 5/3 मीटर पर, और एवरेज वेलोसिटी
डिस्प्लेसमेंट बाई, सो 3 बाई मतलब 1 मीटर पर सेकेंड और दैट विल बी लेफ्ट में। कौन सा डायरेक्शन में? बिकॉज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज योर all answers for this situation. I have kept the equation very simple to make calculation easy. बुझी ना? This distance total is how much? 4. And after 3 seconds, after where 3 seconds? After 3 seconds, particle was at 3 meter. पोजीशन कहां से मेजर होता है? ओरिजिन से, मतलब यहां से यहां तक पार्टिकल यहां पर था, यहां से यहां तक कितना मीटर है? नहीं नहीं नहीं, यहां से t इक्वल टू 3 तक 3 मीटर, तो टोटल कितना था? तो यहां पे कितना होगा? मतलब वो गया था 4, घूम के आया 1। बुझी ना? अभी बोलना तो लेट्स डू मोर एनालिसिस, लेट्स सी हाउ योर ब्रेन वर्क्स। दिस इज इनिशियल पोजीशन, व्हाई वेलोसिटी वाज डिक्रीजिंग? बोलो। एक्सीलरेशन क्या होता है, याद है क्या सर? एक्सीलरेशन होता है डीवी बाई, होता है नहीं होता है? तो अगर मैंने वापस डेरिवेटिव किया होता तो मुझे क्लियर आइडिया मिल जाता। 2t माइनस 4 है, 2t माइनस, सो ए का वैल्यू कितना आएगा? ए का वैल्यू कितना आएगा? 2। अरे 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt बाई dt कितना हो जाएगा? 1। और डेरिवेटिव ऑफ 4 कितना है? सो एक्सीलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब प्लस आया या माइनस आया? प्लस आया। क्या आया? पार्टिकल किधर मूव कर रहा था? लेफ्ट। और ए किधर काम कर रहा था? किधर? प्लस आया ना, राइट। तो अगर पार्टिकल जाना चाहता है लेफ्ट और फोर्स एक्सीलरेशन मतलब फोर्स का डायरेक्शन एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू क्या? पार्टिकल जाना चाहता है लेफ्ट में, एक्सीलरेशन काम कर रहा है राइट में, तो ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड डिक्रीज होगा। क्या होगा? तो डिक्रीज हुआ था, कितना हुआ था डिक्रीज होते होते? 0 हुआ था। हुआ था नहीं हुआ था? नहीं हुआ था? हुआ था या नहीं हुआ था? और यहां पे एक्सीलरेशन क्या है? टाइम का फंक्शन या कांस्टेंट? मतलब एक्सीलरेशन कभी कम ज्यादा होगा क्या, या उसी डायरेक्शन में लगा रहेगा? उसी डायरेक्शन में लगा रहेगा। तो पार्टिकल रुकेगा क्या? इसलिए नहीं रुका क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा था। जब फोर्स अपोजिट लग रहा था तो उसका वैल्यू कम हो रहा था, 0 हो गया, फिर वो वापस आया। फिर वो जस्ट लाइक ए बॉल, बॉल अगर ऊपर मारेंगे तो ग्रेविटी किधर काम करता है? नीचे नहीं काम करता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर धीरे धीरे जाके इधर जाके वेलोसिटी 0 होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिर किधर आता है? सो दिस सिचुएशन इज इक्विवेलेंट टू बॉल थ्रोन अपवर्ड। बॉल थ्रोन, एक बॉल को ऊपर मारा तो ऊपर जाके वेलोसिटी कितना हो गया, फिर वापस क्यों आता है? बिकॉज कांस्टेंट एक्सीलरेशन इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इज एक्टिंग ऑन द बॉल। सो हियर ऑल्सो ऑन दिस पार्टिकल देयर इज ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन एक्टिंग। That means when the ball was traveling or man was traveling left, A was towards right, velocity और acceleration opposite में होगा तो speed का वैल्यू डिक्रीज होगा, फिर 0 होगा, फिर रुकेगा क्या, किधर आएगा? अगर A 0 होता तो उधर रुक जाता। अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड? ओके, राइट एवरीथिंग। इक्वेशन ऑफ लिखबोटा की ओके। नंबर 1 चेक, नंबर 2
again check number 3, again check number 4, again check number 5, ये साइड में लिख के रखना, एंड वेर इज सी, 6, और ये थोड़ा नॉलेज के है कि एक्सीलरेशन किधर था, एक्सीलरेशन राइट की तरफ था, तो वेलोसिटी पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ. ओके, काइनेमेटिक्स इज वेरी इजी इफ यू डू एनालिसिस. If you want some formula, rectification, V equal to U plus AT, S equal to UT plus half AT square, that is not going to do all works. Okay, it will only do for 9th-10th student. Here you have to do analysis कि पार्टिकल कहां पर था, कहां रुकेगा, वापस आएगा नहीं आएगा, एक्सीलरेशन होगा नहीं होगा. You have to check everything with mathematics. Now we will do the same numerical using graphical method, and then we will do the same numerical using calculus. Same numerical. पूरा सिचुएशन को घर में एक बार बैठ के क्वेश्चन पढ़ के यू डू द सेम एनालिसिस, एंटायर फ्लो, कि पहले मुझे वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल के क्या चेक करना है, दैट वेदर द पार्टिकल इज मूविंग इन कंटिन्यूअसली इन ए स्ट्रेट लाइन और इट इज टेकिंग ए यू टर्न. इफ इट इज टेकिंग ए यू टर्न देन आई हैव टू डू सम मोर एनालिसिस. कहां पे वेलोसिटी जीरो होगा, कहां पे पार्टिकल रुकेगा, है ना, वापस आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा, पोजीशन किधर है, इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट यू हैव टू चेक. हंसना नहीं है रे, बाहर बोर्ड में लिखा दूंगा, हंसना मना है. ठीक वो कल के, ठीक है ना भाई. आइडियल सिचुएशन था. आइडियल सिचुएशन.
ହଁ ଏତାଲିକି ତ ବାଡ଼ି ଜିନିଷଟା ହେଇପାରେ କ୍ରେନ୍ସ ତ we principally use for it. Next, try the numerical using graph. Don't sit idle. Idle mind is devil's workshop. You will have devil in your mind, and that devil you will deteriorate you. What is called lady devil? Devil is a man or woman? Both. Oh, नहीं लड़कियों का दिमाग में क्या आएगा वो सोचो. What is the female version of devil? Draw velocity time graph. You have equation of velocity. Try to draw velocity time graph. Have you written everything? Can I go to next page? Okay, not okay? Okay, very good. Now see, we'll do the same numerical using graph. Let us draw the graph. सर किसका किसका ग्राफ बनाना है? इधर है वेलोसिटी, मान लो क्या है इधर? इधर है वेलोसिटी v, है ना, और इधर है टाइम. इधर क्या है रे? इधर क्या है? टाइम का यूनिट सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, isn't it? You have the equation for velocity, then why you are sitting 2t minus 4? 2t minus 4, this is in y axis, y equal to mx plus of minus c. So this is equation of straight line. Equation of what? नहीं सिखाया था स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? इक्वेशन ऑफ व्हाट? अगर मैं तुमसे बोलता ड्रॉ द इक्वेशन ऑफ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन y इक्वल टू 2x माइनस 4, तो कैसे ड्रॉ करता तुम? सर मैं पहले क्या करता, x की जगह पर 0 पुट करता. करता या नहीं करता? x जब 0 है y कितना है? -4. x जब 0 है y कितना है रे? है या नहीं है? तो मेरा ग्राफ कहां से शुरू होगा? -4 से. कहां से शुरू होगा? -4 से शुरू होगा. और मुझे पता है ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है मतलब ये ऐसे जाएगा, है ना? जाएगा नहीं जाएगा? अभी मुझे पता करना है ये कोऑर्डिनेट. ये कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा? मुझे मालूम है कि ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y का वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा. तो y जब 0 है क्या मैं x निकाल सकता हूं? कितना होगा बोलो? 2 होगा. इतना टाइम क्या लगता है रे? y के जगह में 0 पुट करना है, x का वैल्यू निकालना है. 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू कितना? 2. x 2 होगा तो y कितना होगा? तो ये 2 कोमा ओके. सो अगर y इक्वल टू 2x माइनस 4 का मुझे ग्राफ आता है तो वेलोसिटी इक्वल टू 2t माइनस 4 का ग्राफ क्यों नहीं आएगा? y एक्सिस को मैंने बदल के क्या बना दिया है, और x एक्सिस को बदल के मैंने क्या बना दिया है? सो सर दिस इज गोइंग टू बी द सेम ग्राफ. ओके नॉट ओके? तो ये क्या है? -4. जब टाइम कितना था? फिर इधर टाइम कितना हुआ? 2 कमा ओके. मुझे जाना कहां तक है? टाइम कहां तक जाना है? क्वेश्चन भूल गया? क्वेश्चन भूल जाता है सॉल्यूशन करते करते, बिकॉज नो फोकस, नो कंसेंट्रेशन लेवल. t इक्वल टू कितना सेकंड तक जाना है? 3 सेकंड तक जाना है ना? अभी ये जो एरिया है, ये एरिया
और ये एरिया, इसको मैं मान लेता हूं A1, इसको मैं मान लेता हूं A2। अभी मुझे बोलना एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। अगर ये y है, ध्यान से बोलना एकदम, अगर ये y है, ये अगर x है, तो एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ क्या होगा? सर ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ का नीचे वाला पूरा एरिया को मैं क्या करना, छोटा छोटा रेक्टेंगल में डिवाइड। हर एक छोटा रेक्टेंगल का विड्थ कितना? dx, और dx इतना छोटा है कि ये हाइट को मैं y मान सकता हूं, तो स्मॉल एरिया कितना होगा? एक छोटा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड, मतलब y इंटू क्या? dx। तो टोटल एरिया कितना होगा बोलना? टोटल एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। उसी तरीके से अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर ये वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, मान लो ये आर्बिट्ररी एनी शेप है, इसके नीचे का एरिया तुम कैसे निकाल के देगा मुझे? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सर पहले y था और dx था, अभी टाइम है और वेलोसिटी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, अभी इंटीग्रेशन ऑफ v dt फिजिक्स में क्या बनता है? तो वेलोसिटी है dx बाई dt, तो dx कितना है रे? v dt। कुछ समझ नहीं आता ये सब। अभी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो dx का इंटीग्रेशन मुझे क्या देगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt फिजिक्स में क्या क्वांटिटी इंडिकेट करता है? टोटल। और टोटल डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से मैं कैसे निकालूंगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से मैं कैसे निकालूंगा? एरिया अंडर। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, योर आंसर इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। सो आई वाज डूइंग वेलोसिटी एंड किसका ग्राफ, क्योंकि मुझे पता था कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाने से उसका एरिया मुझे क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट। देगा नहीं देगा? अरे देगा या नहीं देगा? देगा नहीं देगा? तो एरिया बोलना, ये A1 बोलना जल्दी से। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू 2 कितना मीटर? ये डिस्प्लेसमेंट है, अभी एरिया क्या दे रहा है? A2 कितना होगा? A2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नो हाइट। 3 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना हुआ मुझे पता है क्या? निकालना पड़ेगा। इक्वेशन था ना मेरे पास, 2t माइनस, था या नहीं था? तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना होगा रे? 2 इंटू 3 माइनस 2 था ये। ओ आंसर। दैट मीन सर ये कोऑर्डिनेट है 2 मीटर पर सेकेंड, कितना? 2 मीटर है ना? तो हाफ इंटू बेस, 2 से 3 1, और ये तो 2 ही है, तो कितना हुआ? 1 मीटर। अभी ये एरिया नीचे है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ए नेगेटिव क्वांटिटी, कैन बी ए व्हाट क्वांटिटी? डिस्प्लेसमेंट कैन बी ए, तो A1 को नेगेटिव एरिया लेना है, पॉजिटिव एरिया लेना है? नेगेटिव एरिया लेना है ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज बिलो द एक्सिस। और एरिया क्या इंडिकेट करता है? और डिस्प्लेसमेंट इस केस में नेगेटिव होगा, तो माइनस प्लस कितना आया? आया नहीं आया? मतलब 3 मीटर टुवर्ड्स नहीं आया? आया नहीं आया? ये क्या आया? पहले भी कितना आया था? अभी डिस्टेंस बोलना,
डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा क्या? तो डिस्टेंस में एरिया को माइनस करना है, मतलब माइनस को माइनस लेना है या प्लस लेना है? मतलब प्लस A1 प्लस, तो A1 का वैल्यू कितना? 4, A2 का वैल्यू तो कितना मीटर? सेम आया था, अलग आया था? सेम ही आएगा, है ना? अंडरस्टूड? हाँ, ड्रॉ। अभी मजा आएगा थोड़ा काइनेमेटिक्स में, यू लव काइनेमेटिक्स, you will grow from V equal to U plus AT. These will need practice rate. These will need. This is the theory related to this. And then comes numerical 1, 2, 3, 4, and this is 5. This is 5. Similar numerical ko if you try by various methods, then only you will understand how things are working in a numerical. ये ধরে যাবে দাদা বুঝা যায়নি करनी बुझा जाएनी ठीक है তুমি ভালো লাগছে নি কি ভালো লাগতে হবে This is 3. 1. This is the theory related to this topic. So 1, 2. First you have to draw the graph, then you have to write this, then you will go for 3, 4. Hey, এটা কি মোবাইলটা কি কেন মোবাইল should not be in the desk, only copy pen. These are your friend, philosopher and guide. Friend, philosopher and other things, they betray you. Only the thing that stays with you is your knowledge. When you die, from your ashes knowledge will come out and give fragrance to the surrounding. Otherwise you will be smelling like stale food. If you have very much high knowledge, if you die, then from your ashes what will come? Fragrance. You do not understand. You will understand after death. That is called afterlife. They do not understand what is afterlife. I was showing them afterlife, salvation, nirvana, moksha. Moksha is only through knowledge. Skills, what you have acquired in this lifetime, gifted by God. God has done so much work in making you. So in return, what skills you have acquired through your life, what you have done for the society, for your family, whatever you do. For family, if you do, that is also work, responsibility. That is also a skill set. For society, that is more enhanced skill set.
or yourself. That is also a skill set. It is not selfish. You should love yourself. But you do nothing, then it is very disgraceful to God itself, Almighty itself. Almighty will be shameful in creating you. प्रवचन लिखा क्या? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता अभी. v इक्वल टू 2t माइनस 4 देखने से ही दिमाग में क्लिक नहीं होता दैट इट शुड बी ए स्ट्रेट लाइन. बोल रहा हूं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाओ. y और x का बोलने से अच्छा y और x का ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम नहीं आता है. लिख लिया. Now try to do the numerical using only calculus. First method was analytical analysis. Second method was graphical. Third method is only calculus. क्यों सर? कैलकुलस का हिंट आपने कहां दिया? दिस इज योर हिंट. इफ यू सी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ v dt. You have the equation of v and you can integrate. You have the equation of v and you can integrate. अरे डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो किसको इंटीग्रेट करेंगे? v को. और v का इक्वेशन है या नहीं है तुम्हारे पास? है ना? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया नेगेटिव लेना है या नहीं लेना है? लेना है. अगर है, ऐसा नहीं हर जगह पे ले लिया. ग्राफ ड्रॉ करके आइडिया लगाना पड़ेगा. बट डिस्टेंस में ओनली पॉजिटिव, बिकॉज डिस्टेंस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी. शुड आई गो टू द नेक्स्ट? ओके, वेरी गुड. ओके, now let us see. Sir, or alternative method, or again or same question. टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा रे? है इंटीग्रेशन ऑफ अंडरस्टूड. व्हाट इज द टाइम लिमिट अंडर कंसिडरेशन? 0 to 3. 0 to 3 में वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव था या नेगेटिव था? नेगेटिव भी था. और 0 से 2 सेकंड तक नेगेटिव था, 2 से 3 सेकंड तक. दैट मीन्स सर यू आर ट्राइंग टू से कि जब मैं इंटीग्रेट करूंगा देन ऑल थिंग्स विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव. यू मस्ट फील यू आर फाइंडिंग आउट डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज. So the entire interval is taken all together. क्योंकि 0 से 2 में क्या होगा? नेगेटिव होगा. 0 2 से 3 में वो क्या होने वाला है? पॉजिटिव. यही होगा. So when you are integrating from 0 to 3, that means all things you are taking into consideration. तो 0 to 3, 2 तो कांस्टेंट है बाहर, t dt. 0 to 3 माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर, dt. 0 to 3. अभी इंटीग्रेशन ऑफ t dt क्या रहे? t स्क्वायर बाई 2 है ना. एंड इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या है? 0 to 3. ओके नॉट ओके? 2 2 कैंसिल. अरे ये फॉर्मूला भी याद नहीं है. नहीं है फॉर्मूला. यहां पे पावर 1 है. 3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर. फोर इंटू 3 माइनस क्या? तो कितना आया? 9 माइनस 12 कितना आया? बट फील कम आता है इसमें. क्या कम आता है? फील कहां पे आता है? फर्स्ट
फर्स्ट में फील आता है व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग, दिस इज सम रोबोट विल डू मैथमेटिक्स, you program it, do some integration of x to the power n dx, you feed the robot with programming, that will do this, but analysis robot cannot do, and that is your future in engineering. If you have to choose engineering, you must not be a robot, you must be able to control robot. What robot cannot do, you should be able to do, otherwise your engineering will be just a certificate, but you will keep and cherish forever for the rest of your life. इंटीग्रेशन ऑफ ईडीटी, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, अभी निकालना है डिस्टेंस, अभी प्रॉब्लम क्या होगा सर, पूरा इंटीग्रेशन एक साथ करने में तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन एक साथ करने में कहीं पे नेगेटिव आएगा और कहीं पे, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो डिस्टेंस विल कैलकुलेट, बट व्हाट विल डू, मॉड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मॉड, मतलब हमेशा क्या होना है, इसको पॉजिटिव होना है, क्या होना है, अच्छा ये नेगेटिव कौन सा इंटरवल में था, 0 to, तो मैं ब्रेक कर देता हूं, ध्यान से देख लो एक बार, 0 to 2, 0 to 2 में 2t माइनस 4 जो क्वांटिटी है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है या नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव, और मुझे पता है डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, मतलब मुझे एक माइनस साइन सामने देना पड़ेगा, अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड, ये क्वांटिटी 0 से 2 तक क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्या है, अरे कोई भी वैल्यू लो रे, t का जगह में 1 पुट करो, t का जगह में 1 पुट करने से 2 माइनस 4 माइनस टू के सामने माइनस दे दिया तो क्या हो जाएगा, +2, और डिस्टेंस के लिए हमें प्लस वैल्यू चाहिए या माइनस वैल्यू, माइनस वैल्यू, माइनस वैल्यू, obviously, so we have to put a what sign, माइनस है, what sign, अभी मैंने 0 से कहां तक लिया, अभी बचा कौन, 2 से, नाउ यू हैव टू ब्रेक एंड डू द इंटीग्रेशन, यहां पे तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के सामने क्या है, ये क्वांटिटी 2 से 3 तक क्या है, तो तुम्हें टेंशन लेना है क्या, मुझे पता था मुझे पॉजिटिव लेना है, तो ये तो पॉजिटिव है ही, और ये नेगेटिव था तो सामने माइनस लगा दिया, तो हमेशा क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, और पॉजिटिव कौन होता है, डिस्टेंस, ओके नॉट ओके, ओके, नाउ डू कैलकुलेशन अगेन, नाउ इट्स कैलकुलेशन, सर -2 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी 0 to 2 -4 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 to 2 फिर प्लस 2 इंटू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी 2 से 3 तक -4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, 2 से कहां तक, नाउ डू दिस इंटीग्रेशन, क्या होगा, ये डायरेक्ट लिखता हूं, है ना, t² 2 को मैं लिख सकता हूं 2² 2 माइनस, फिर 4 इंटू 2 माइनस 0, है ना, प्लस 2 इंटू क्या होगा, t² 2 मतलब 9² 2 माइनस 2² 2, अरे होगा नहीं होगा, प्लस 4 इंटू 3 माइनस 2, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, t होता है ना, और इधर 2 है इधर 3 है, मतलब क्या है, 3 माइनस, एक बार t का जगह पर अपर लिमिट, फॉर्मूला का माइनस, एक बार t का जगह पर लोअर लिमिट, ऐसे ही तो इंटीग्रेशन को खोलते हैं हम लोग, याद नहीं है, तब भूल गया इंटीग्रेशन, वेरी गुड, इन दिस वे यू विल क्रैक ऑल एग्जाम्स, योर अप्रोच इज वेरी पॉजिटिव, 2 into 2, oh sorry, I am very sorry sir, you should be sorry, 3² 2, t² 2 है ना, तो 3² 2 माइनस 2² 2, ओके, -4 -4 2 कितना 8
प्लस कितना, ये 2 कैंसिल चला जाएगा, 9 माइनस 4 5 है ना, प्लस 4 इंटू 1, 4 और 4 क्या चला गया, ये माइनस क्यों आया, अरे यहां पे प्लस साइन था रे, ये माइनस था ना सामने, माइनस माइनस क्या होना था इसको, और कहां पे गलती हुआ, 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 0, देन अगेन 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, 4 इंटू 3 माइनस 2, ओके, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 8, प्लस 8, यहां पे कुछ गलती हुआ है, 9 माइनस 4 5 प्लस 4 इंटू 1, ये 8 एक एक्स्ट्रा आया, कहां से आया, 0 से कहां तक, 2 तक, कैलकुलेशन देखना है एक बार, 0 से 2, 0 से 2, सो टी स्क्वायर बाई 2 होगा ना, 2 कैंसिल, so 4 minus 0, this is going to be 4, this comes out to be how much, this quantity, hey see this quantity is how much, ठीक नहीं होगा रे, कैसे ठीक होगा ये, there must be some calculation mistake, have you checked, or you are not in a mood to check, d square by 2, 2 square by 2 minus 0 square by 2 cancel, एक 2 cancel, minus 4 plus 4 cancel, no, उसका लिमिट क्या था, 0 से 2 तक, लिमिट इश, इधर माइनस है रे, ये क्या है, कुछ नहीं देखता तुम लोग ध्यान से, इधर देखो ये प्लस और माइनस क्या होता, आंसर क्यों नहीं आएगा, 2 कैंसिल, माइनस 4 प्लस 8 प्लस वर्ड, दिस इज वर्ड, 9 माइनस 4 5 माइनस वर्ड, फिर भी नहीं आया, ये कैंसिल ना, 5 मीटर आया नहीं आया, आएगा रे, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, फंडामेंटल तो कभी मिस्टेक नहीं होगा, 5 मीटर इज योर वर्ड, 5 meter is what, distance, and 3 meter is displacement, okay, so by all methods you have to try this type of numericals, how I can do by graph, how normal analysis, how using calculus, we'll continue HC Verma in the next class.